Hello friends, myself CA Gurmukh Ragani will be taking your bookkeeping and accountancy of 11th commerce. One of the most important subject of 11th commerce. You can say that bookkeeping and accountancy is the backbone of your commerce. Backbone of commerce. आज हम थोड़ा सा बुक कीपिंग अकाउंटेंसी का इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे. विल हैव सम इंट्रोडक्शन ऑफ दिस सब्जेक्ट. विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस सब्जेक्ट इज अबाउट. व्हाई डू वी हैव दिस सब्जेक्ट इन कॉमर्स. दोस्तों, आवर टारगेट विल बी टू हैव गुड नॉलेज ऑफ एवरी सब्जेक्ट. बेसिकली आवर पंच लाइन इज योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज द मेन मोटो. तो हमारा टारगेट दोस्तों ये रहेगा कि आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर होने चाहिए. द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट शुड बी देयर. रट्टाफाइंग ऑफ द सब्जेक्ट इज नॉट टू बी डन, अंडरस्टैंडिंग इज टू बी डन. सो हम लोग दोस्तों उसी टारगेट के साथ हर सब्जेक्ट को स्टडी करेंगे. वी हैव वन ऑफ द बेस्ट टीम ऑफ टीचर्स विथ ह्यूज एक्सपीरियंस ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स. Let us start with this subject, which is the backbone of commerce, bookkeeping and accountancy. दोस्तों, we'll try to understand with one story, with one example. So we have a business. What are different business transactions that we have? Business first transaction, purchasing goods from suppliers. बिजनेस में सप्लायर से गुड्स परचेज किए जाते हैं. Those goods are sold to customers. वो जो सामान हम परचेज करते हैं वो हम कस्टमर को बेचते हैं, सेल करते हैं. वेरी सिंपल बिजनेस ट्रांजैक्शन, बाइंग, सेलिंग. एंड व्हाट वी डू, वी अर्न प्रॉफिट. हम उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ देते हैं. 100 में लिया, 125 में बेचा. परचेस्ड फॉर 100, सोल्ड फॉर 125. 25 अपना मार्जिन, प्रॉफिट. Apart from this buying and selling of goods, we have, friends, many other transactions, like we deal with bank. And now bank has become a very important part of business transactions, especially after demonetization. Now most of the transactions are done through bank. And in fact, with coronavirus, this has increased like anything. For example, in our classes, 95% of the fees we are now collecting through bank. Google Pay, Beam app, online banking, everything. So bank is a very important part of a business. Fourth number will be the government of India. टॉप पे रखा है उसको. Why the government is connected to business? We pay taxes to government. Business has to pay GST to government. Business has to pay income tax to government. So government is also connected with business. So there are so many people who are connected. Basically, we have a very huge number of transactions in the business. Hundreds of times we purchase from suppliers. Thousands of times we sell to customers. Thousands of bank transactions.
many tax payments to government, many. apart from this, अच्छा एक बात बताओ, इतने सारे ट्रांजैक्शंस कैन यू मेमोराइज? क्या इतने सारे ट्रांजैक्शंस आप याद रख सकते हैं? आंसर इज वेरी डिफिकल्ट. देखो, छोटा मोटा बिजनेस होता है ना, तो सब चीजें है ना ब्रेन में आ जाती हैं, very limited transactions. But when you work with a large scale, you cannot memorize thousands and thousands of business transactions. Cannot. Take an example. हमारे कुछ कस्टमर्स हैं. एक कस्टमर है हमारा जिसका नाम है पप्पू भाई, पप्पू. हर 2-3 दिन में हम उसको गुड्स बेचते हैं, वो पैसा बीच में थोड़ा देता है, ऑन अकाउंट थोड़ा थोड़ा जमा करते जाता है. हम बेचते हैं, वो पैसा देता है, बेचते हैं, पैसा देता है. हिसाब नहीं करते जल्दी, महीने महीने हिसाब करते, 2-2 महीने हिसाब करते. अब 2 महीने के बाद पप्पू हमारे दुकान पे आया, बोला हिसाब तो निकालो. आप मुझे बताओ, is it practically possible to memorize all transactions with पप्पू? याद कर सकते हैं? नहीं कर सकते. किधर लिखा रहेगा ना, बहुत आसान है. पप्पू के ट्रांजैक्शंस हमारे नोटबुक में लिखे रहेंगे, बहुत आसान है. ऐसे ही बैंक ट्रांजैक्शंस हैं, सप्लायर के ट्रांजैक्शंस हैं, इवन many more, like there are more entities which are connected with business, like transport. रेगुलरली सप्लायर्स के यहां से ट्रांसपोर्ट में गुड्स आते हैं, हम कस्टमर को ट्रांसपोर्ट के थ्रू गुड्स डिलीवर करते हैं. डेली बेसिस पे हमारे दुकान में वी हैव सम टी, कॉफी, रिफ्रेशमेंट्स कमिंग इन फॉर द कस्टमर्स, फॉर द सप्लायर्स, फॉर आवर एम्प्लॉइज. You have stationery purchased for the business. You have notebooks, you have registers. There are number of employees in the business to whom we pay salary. हम उनको पगार देते हैं, सैलरी देते हैं हर महीने. ऐसे दोस्तों और कई बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं. तो एक इंसान, एक बिजनेसमैन, एक ओनर ऑफ द बिजनेस कैन नॉट मेमोराइज ऑल ट्रांजैक्शंस. प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. So what ideally we should be doing? Yes, इन सब ट्रांजैक्शंस को क्योंकि याद करना डिफिकल्ट है, रादर डिफिकल्ट की जगह बोलूंगा इम्पॉसिबल है, when we have thousands of lakhs of transactions. What is the solution to this problem? Best क्या करेंगे? इन सब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, इन राइटिंग रिकॉर्ड करेंगे. दोस्तों हमारे जो ये thousands of business transactions हम रिकॉर्ड करते हैं, बुक्स में लिखते हैं, this is called as bookkeeping, keeping the books of accounts. Because practically we cannot memorize. Write it down, write it down. But we do it very very systematically. Very very systematically मतलब
एक बात बताइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन आपको पूछता हूं। आपके 10th स्टैंडर्ड में आई थिंक देयर वाज सम 6 सब्जेक्ट्स, लाइक यू हैव इवन साइंस में 3 सब्जेक्ट्स थे, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। इन मैथ्स वी हैव 2 पार्ट्स, एलजेब्रा, ज्योमेट्री। सोशल साइंस में 3 पार्ट्स होते थे, यू हैव हिस्ट्री, यू हैव सिविक्स, यू हैव ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, many more subjects. And tell me one thing, क्या आप इन सब सब्जेक्ट्स का एक ही नोटबुक में लिखते थे? एक ही नोटबुक, ऑल सब्जेक्ट्स, टेंशन ही नहीं। अपना जो बैग हम स्कूल में लेके जाते हैं, वजन आधा, हाफ। अगर आप ऐसा करेंगे तो सोचो क्या होगा। आप सोचो, इमेजिन करो, एक ही नोटबुक में सब सब्जेक्ट लिखे हैं। जब आपको रिवीजन करना है, पढ़ना है, तो सब मिक्सचर बना हुआ है, कॉकटेल नोटबुक बोलेंगे उसको हम। यू कैन नॉट डू द थिंग्स प्रॉपरली, कैन नॉट रिवाइज इट प्रॉपरली। दोस्तों, आपको कुछ भी ढूंढना रहेगा ना, आपको बहुत डिफिकल्टी होने वाली है वहां पे। दोस्तों, व्हाट इज द सिस्टमैटिक वे? सेपरेट नोटबुक फॉर ईच सब्जेक्ट। Here also our recording of the transactions, business transactions should be very, very systematic. हम दोस्तों क्या करते हैं, जो सप्लायर के साथ ट्रांजैक्शंस होते हैं अलग नोटबुक में रिकॉर्ड करेंगे, कस्टमर ट्रांजैक्शंस को अलग नोटबुक में रिकॉर्ड करेंगे, बैंक ट्रांजैक्शंस को अलग रिकॉर्ड करेंगे, टैक्सेस गवर्नमेंट अलग, मतलब हर चीज को अलग अलग जगह रिकॉर्ड करेंगे। उससे क्या होगा, whenever you need to see something, want to refer something, want to find out something, it will be very easy. अब मेरा पप्पू भाई जो मेरे से हिसाब करने आया, मेरा कस्टमर, मैंने क्या किया है, कस्टमर का नोटबुक रिकॉर्ड्स अलग बनाए हैं। अब क्या होगा, व्हेनेवर ही विल कम, बोलेगा हिसाब निकालो, मैं बोलूंगा 2 मिनट रुको, चाय पियो, तब तक नोटबुक खोलूंगा, हिसाब सामने रखूंगा। इट शुड बी डन वेरी क्विकली। वो बोले हिसाब निकालो, हम ऐसा नोटबुक निकालेंगे कस्टमर का, पप्पू का पेज खोलेंगे, ये लो पप्पू, ये तुम्हारा हिसाब, खत्म। 2 मिनट के अंदर हिसाब क्लियर। दैट्स वाई वी राइट द वर्ड सिस्टमैटिक। एवरीथिंग दैट इज डन सिस्टमैटिकली इज गोइंग टू बी, यू कैन से, फ्रूटफुल, सक्सेसफुल। दोस्तों, बुक कीपिंग किसको बोलते हैं? बुक कीपिंग इज सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। सिस्टमैटिक वर्ड का मीनिंग आपको मैंने बताया। डिटेल में आप पढ़ेंगे इसको, डिटेल में आप पढ़ेंगे इसको आगे के चैप्टर्स में, हाउ वी मेक इट वेरी सिस्टमैटिक। इन्वॉल्विंग मनी एंड मनीज वर्थ। दोस्तों, हमारे बिजनेस में ना कोई भी ट्रांजैक्शन होता है ना, उसमें पैसे का लेन देन होता है। वी हैव मनी गिवन और मनी रिसीव्ड। तो हम वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जिसमें पैसे का लेन देन होता है, या कुछ ऐसा लेन देन होता है जो मनी टर्म्स में हम वैल्यू कर सकते हैं।
इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर मैं आगे बहुत डिटेल में जाऊंगा। अभी आप ध्यान में क्या रखेंगे, बुक कीपिंग मतलब इन अ वेरी सिंपल लेमन लैंग्वेज, हमारे जितने बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं हमारे, उनको सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करना, राइटिंग में रखना। उन सबको किस में रखना? सिस्टमैटिकली राइटिंग में रखना। दोस्तों हिस्ट्री ऑफ बुक कीपिंग, हमारे बुक कीपिंग का अगर आप हिस्ट्री देखेंगे, आपने एक पर्टिकुलर नाम सुना होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। उसके टाइम पे ना एक बहुत ही बड़ा जीनियस इंडिया में था, अ बिग जीनियस ऑफ इंडिया, चाणक्य। आपने काफी कुछ सुना होगा, चाणक्य नीति। ही एक्चुअली वॉज वन ऑफ द, you can say, most brilliant person, multitasking personality। ऐसा कहा जाता है जैसे आज की पॉलिटिक्स है, यह भी उसकी क्रिएटिविटी है। आपको बता दूं, बुक कीपिंग इंडिया में लाने वाला यही बंदा था। उसने एक बुक लिखा था जिस बुक का नाम था अर्थशास्त्र। ये बुक में ही taught हाउ टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन सिस्टमैटिकली। डेफिनेटली अब हम इस मेथड से नहीं रिकॉर्डिंग करते हैं, हमारा मेथड काफी डेवलप्ड मेथड है। ये पुराने मेथड्स आपने सुना होगा, मुंशी, पुराने जमाने में मुंशी है ना, बही खाते लिखते थे, ऐसे वर्डिंग आते हैं, मुंशी बही खाते, पिक्चर्स में देखा होगा। तो ये पुराने जमाने के तरीके हैं। अर्थशास्त्र नाम का बुक में तरीका, द वे इज गिवन हाउ टू राइट द बुक्स ऑफ अकाउंट। दोस्तों बाद में ना ये सिस्टम और पॉपुलर हुआ, एंड in many places of country this was called as desi nama. This is, you can say, desi matlab this is your Indian local way of making the books, records. हम आज ये यूज नहीं करते हैं। You don't use this system nowadays. हम एक बात आपको और बता दूं दोस्तों, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इंडिया ने वर्ल्ड को दी हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी और चीजें हैं जो वर्ल्ड ने इंडिया को दी हैं। किसने किसको दी है? वर्ल्ड ने इंडिया को दी है। अकाउंट्स की बात करेंगे, अगर हम अकाउंट्स की बात करेंगे तो अकाउंट्स इंडिया की क्रिएटिविटी नहीं है, ये बाहर से इंपोर्ट किया है हम लोगों ने। देयर आर मेनी कंट्रीज व्हिच आर अहेड ऑफ इंडिया इन अकाउंटिंग, यूके, यूएस। ये कंट्रीज ऐसे कंट्रीज हैं जो अकाउंटिंग में हमसे बहुत आगे हैं। मैं पुरानी बात भी बताऊंगा और आज की पोजीशन भी आपको बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों 2016 से आप बोल सकते हैं कि इंडिया में अकाउंटिंग में एक रिवॉल्यूशन आ गया है, रिवॉल्यूशन आया है, और उसकी वजह से अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स का यू कैन से डिमांड और बढ़ गया है, विथ नॉलेज, मॉडर्न नॉलेज, रिसेंट नॉलेज। पहले मैं पुरानी हिस्ट्री में जाऊंगा। इटाली, दिस इज द कंट्री वेयर द प्रॉपर
proper system of accounting was created in the year 1494. The name of the person who developed this system was Luca di Borgo Pacioli. Luca di Borgo Pacioli. This person created double entry system. डबल एंट्री सिस्टम. इसने एक बहुत जबरदस्त इन्वेंशन किया. इसने ना एक बहुत ही बेसिक आइडिया दिया. बोला देखो, बोलता है बिजनेस मतलब क्या. बिजनेस में उसने बोला दो बातें होती हैं, लेन देन. बिजनेस कुछ भी आप देख लो बिजनेस में दोस्तों, उसमें दो बातें आपको मिलेंगी, लेन देन. आप कुछ देते हैं, आप कुछ लेते हैं. आप सप्लायर से गुड्स लेते हैं, सामान लेते हैं, पैसा देते हैं, लेन देन. आप कस्टमर को गुड्स देते हैं, सामान देते हैं, पैसा लेते हैं, लेन देन. आपके जो दुकान पे लोग काम करते हैं, एम्प्लॉइज वर्किंग इन योर बिजनेस, आप उनकी सर्विसेज अवेल कर, यू अवेल दी सर्विसेज ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ योर बिजनेस. यू पे देम, यू गिव समथिंग टू देम, यू रिसीव समथिंग फ्रॉम देम. लेन देन. तो इस बंदे ने क्या बोला, हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस में दो एस्पेक्ट्स होते हैं, लेन देन, दो डबल एंट्री. इसने जो सिस्टम क्रिएट किया ना, इसने बोला हम हमारे ट्रांजैक्शंस को जब बुक्स में लिखेंगे, हम जब हमारे ट्रांजैक्शंस को बुक में लिखेंगे तो दो पार्ट्स, एक लेन एक देन. लेन देन दो इफेक्ट्स देंगे, डबल एंट्री सिस्टम. और दोस्तों आज की तारीख में भी हम यही डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं. आज बहुत डेवलप्ड स्टेज पे है ये अपना सिस्टम. दोस्तों याद रखना, 2016 से इंडिया में अकाउंटिंग रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका है. एम क्या है, हमारी इंडियन कंट्री ग्लोबल लेवल पे कॉम्पीट करनी चाहिए. दोस्तों अगर हमारी इंडियन कंट्री ग्लोबल लेवल पे कॉम्पीट करेगी तो हर एंगल से, हर एरिया में कॉम्पीट करनी चाहिए, अकाउंटिंग में भी कॉम्पीट करनी चाहिए. तो हमारे जो अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स हैं 2016 से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के लेवल पे लाए गए हैं. नाउ आवर अकाउंटिंग लेवल इज इंक्रीजिंग to international accounting level. It is in the process. Gradually we are entering into this new era of accounting wherein Indian accounting level will be equal to international accounting level. And because of that, see, international accounting is a bit complicated compared to Indian accounting. Rather than bit, I will say more complicated. Things are more complicated and more, you can say, better, far better. So we are now trying to become better. And to implement that particular international accounting in India, we need experts like chartered accountants.
Day by day the demand is increasing. Because of this also we need the people who can implement international accounting in India. इंडियस बोलते हैं हम उसको इन अ सिंपल लैंग्वेज. ये क्या होता है अभी आपको नहीं समझेगा, बाद में आगे के लेवल्स में आप सीखेंगे. मैंने जस्ट आपको एक आइडिया दिया हिस्ट्री और आज की क्या पोजीशन है. आपको पता होगा दोस्तों इंडिया में ये अकाउंटिंग बनाता कौन है. हु इज द टॉप अथॉरिटी ऑफ दिस अकाउंटिंग इन इंडिया. जैसे अगर मैं बैंक्स में बोलूं हु इज द टॉप अथॉरिटी इन बैंक्स, आप बोलेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. और जैसे आप बोलेंगे कि प्राइम मिनिस्टर इज द टॉप अथॉरिटी टू कंट्रोल द सेंट्रल ऑल ओवर इंडिया, ऐसे ही हर पर्टिकुलर फील्ड में एक टॉप अथॉरिटी रहता है. दोस्तों हमारे अकाउंटिंग में टॉप अथॉरिटी इंडिया का है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. It is said that our institute, ICAI shortcut, is at rank number 2 at global level. It has got eminent members, brain, ultimate people. You can say this population of chartered accountants is cream population, brain population of India. One of the best course you can go for in commerce. तो जो हमारा इंस्टीट्यूट है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, यही हमारे सब अकाउंटिंग के रूल्स बनाता है इंडिया के. हम जो भी अकाउंटिंग में जिंदगी भर सीखेंगे is all made by CA Institute. आपके नॉलेज के लिए बता दूं, दिस इंस्टीट्यूट वॉज क्रिएटेड इन द ईयर 1949. 1949 दोस्तों, इंडिपेंडेंस के 2 साल के बाद इंडिया में सीए का डिग्री स्टार्ट हुआ था. ठीक है दोस्तों, आई होप द थिंग्स आर गेटिंग क्लियर. आज का लास्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन, हमारे बिजनेस में कौन से ट्रांजैक्शंस होते हैं. दोस्तों हमारे बिजनेस में 3 टाइप के ट्रांजैक्शंस होते हैं. बार्टर सिस्टम, कैश, क्रेडिट. ये जो बार्टर सिस्टम है ना, ये बहुत पुराने जमाने का सिस्टम है. इन एंशिएंट डेज, many years back, hundreds of years back, what was done, barter system was followed. What is a barter system? Let us try to understand what is a barter system. Barter system is exchange of goods for goods. आप किसी को अब फार्मर्स क्या करते थे, फार्मर्स अपना क्रॉप किसी को देते थे, बदले में कपड़े लेंगे, बदले में फ्रूट्स लेंगे. बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता था, कैश नहीं चलता था. पुराने जमाने में ऐसा होता था, सामान के बदले में सामान एक्सचेंज होता था. दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने बीच में एक इंटरनेट पे न्यूज देखा था जिसमें इस कोविड-19 में भी ऐसा सिस्टम रीस्टार्ट हुआ है कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, wherein people have started barter system, exchanging goods for goods, सामान के बदले में सामान.
Otherwise this system is nowadays not prevailing, not working at all. दोस्तों आज की तारीख में एक बहुत अच्छा सिस्टम जो चल रहा है कैश सिस्टम. कैश सिस्टम कैसे चलता है आप समझना. दो एंटिटीज हैं, यहां पे बिजनेस है, जहां पे कस्टमर है. बिजनेस कस्टमर को क्या देता है? गुड्स, सामान देता है. आप मोबाइल लेने गए तो दुकानदार ने आपको मोबाइल दिया, आपने बदले में ऑन द स्पॉट पैसा दिया. ऑन द स्पॉट पैसा दिया दुकानदार को, सामान लिया, उसी समय पैसा दिया. कैश ट्रांजैक्शंस. कैश ट्रांजैक्शंस. आप जाते हैं किराने के दुकान पे, यू बाय सम स्टफ फ्रॉम देयर, इमीडिएटली यू पे कैश. ऑन द स्पॉट अब जब पैसा देते हैं दुकानदार को सामान लेके, वी कॉल इट एज अ कैश ट्रांजैक्शन. इन कैश ट्रांजैक्शन you sell goods to customers, you receive cash on the spot. अच्छा, इसका उल्टा भी होता है. आप सप्लायर से गुड्स परचेज करते हैं, सप्लायर से गुड्स परचेज करते हैं, कैश ऑन द स्पॉट देते हैं. कैश ट्रांजैक्शन मतलब इस ट्रांजैक्शन की इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? कैश ऑन द स्पॉट या तो दिया जाता है या तो लिया जाता है. करेक्ट. तो दोस्तों ऑटोमेटिकली यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट वुड बी अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन. What happens in a credit transaction? Again we have a business, we have some customers, the goods are given to customers, सामान कस्टमर को देते हैं, पैसा उसी समय नहीं लेते हैं. The money is received from customer after some time, maybe एक हफ्ते के बाद, 15 days के बाद, एक महीने के बाद, 2 महीने के बाद. तो फ्रेंड्स हियर व्हाट हैपेंस, ट्रांजैक्शन इज डन नाउ बट मनी इज नॉट मूविंग नाउ. क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोलते हैं हम इसको. क्या बोलते हैं इसको दोस्तों? हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोलते हैं दोस्तों. दोस्तों may it be cash transaction, may it be credit transaction, may it be barter, we should learn how to record this, how to record this. दोस्तों हमारे ये 3 टाइप के ट्रांजैक्शंस आज हमने डिस्कस किए. तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया? व्हाट वी डिस्कस्ड, बिजनेस में क्या क्या ट्रांजैक्शंस होते हैं. प्रैक्टिकली इट इज वेरी डिफिकल्ट, रादर इम्पॉसिबल टू मेमोराइज ऑल द ट्रांजैक्शंस. सो व्हाट इज टू बी डन? वो सब ट्रांजैक्शंस को हम एक बुक्स में लिखेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, और उसको हम बोलते हैं बुक कीपिंग. हमारे दोस्तों ट्रांजैक्शंस 3 टाइप के होते हैं, बार्टर, कैश, क्रेडिट. बार्टर सिस्टम वेयर इन वी एक्सचेंज गुड्स फॉर गुड्स, सामान के बदले में सामान. कैश ट्रांजैक्शन, सामान के बदले में कैश, बट ऑन द स्पॉट कैश लिया जाएगा या दिया जाएगा. क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब ट्रांजैक्शन वेयर इन goods are given now or received now but cash is paid or received afterwards. सामान अभी लिया दिया जाता है, पैसा बाद में. जैसे हमारा चाय वाला है, हम पूरा मंथ उससे चाय मंगाते हैं, वी गेट द टी फ्रॉम द टी शॉप, पेमेंट अगले मंथ में एक साथ करते हैं. इट्स अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन. इट्स अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन. अंडरस्टूड?
देर आर सो मेनी थिंग्स टू लर्न. बहुत बड़ा ओशियन है नॉलेज का. आज का सेशन हम दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं. विल फिनिश ऑफ द इंट्रोडक्शन पार्ट. मेनी मोर थिंग्स टू डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर. So we'll meet in the next lecture. तब तक please be careful, stay safe, stay home. From this side, Gurmukh Ragani signing off. Thanks a lot, friends.